now we will study about the peasant, right? So in the countryside, peasants cultivated most of the land, right? So countryside in Russia, people cultivated most of the land, but the nobility, the crown, and the Orthodox Church owned a large properties. जो nobility हमने पढ़ा था है ना, जो भी टॉप क्लास में थे है ना, फर्स्ट जो हमने एस्टेट के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एंड थर्ड, राइट। तो ये जो नोबिलिटी थे, दे द क्राउन है ना, मतलब जो किंग और क्वीन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च owned a large property. Okay, though the peasant cultivated most of the land, but the properties were on the hands of all these people, right? So like workers, peasants too were divided. तो ये जो peasants थे वो भी मतलब divided थे, ठीक है। जैसे workers divided थे ना, उन लोगों के पास बहुत मतलब problems थे, they were divided on the basis of their skills. तो ऐसे ही peasants भी divided थे. They were also deeply religious. Okay, so they were religious, and they were divided maybe according to their land they are having. Okay, so peasants did not respect the nobles. So basically peasants did not respect the nobles. जो nobles थे, ये जो तीन community के लोग थे है ना, they did not respect. Why? Because nobles, they got their power and position through their services to the जो भी हमने पढ़ा था सार के बारे में है ना, not through local popularity. तो ये जो nobles थे, peasants did not respect the nobles because they wanted the land of the nobles. उन लोगों को सिर्फ land चाहिए था nobles का, ठीक है। लेकिन noble जो है वो उन्होंने कैप्चर किया हुआ था जो लैंड थे, इसीलिए दे डिड नॉट लाइक द नोबल्स। ओके, एंड जो नोबल्स थे वो लोग, जो उन लोगों की पॉपुलैरिटी थी, जो भी पोजीशन या पावर थे, किस लिए थे? क्योंकि दे वर वेरी क्लोज टू द किंग है ना, सार निकोलस जो थे उन लोगों के मतलब क्लोज थे, दैट इज व्हाई, या फिर सर्विस देते थे जो नोबल्स थे, दैट इज व्हाई they have popularity, but not through the local people, that means peasants, workers है ना। तो जो peasants थे, they basically did not like the nobles. So in Russia, peasants wanted the land of the nobles to be given to them. Okay, so Russia में the peasant wanted the land of the nobles. Frequently they refused to pay rent and even murdered the landlords. So at that period of time ऐसा हो रहा था, they were about to revolt, right? They were about to revolt. They refuses all the payment of the rent that they are living, right? They even murdered the landlords, right? So basically they hate the nobles. Okay, they hate the nobles. Okay. So यहाँ पे हमने क्या पढ़ा peasants के बारे में? हमने क्या पढ़ा? That they were also divided like the workers in the factory है ना, जो भी workers थे factory के वो भी divided थे, तो वैसे ही peasants जो थे वो भी divided थे, and they did not respect the nobles. Okay, because why they did not respect the nobles or did not like the nobles? Because they the peasants wanted the land of the nobles. Okay, they wanted the land of the nobles. So in 1902, this occurred on a large scale in Russia. This occurs means
all the revolt, all the chaoses occurred on the large scale in South Russia. तो साउथ रशिया में बहुत सारे ऐसे जो इवेंट है वो स्टार्ट हो चुके थे, राइट. एंड 1905 में such incidents took place all over Russia. जो ये जो फॉर एग्जांपल मर्डर हो गया, रॉबरी हो गई, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट 1905 में रशिया में ऑल ओवर रशिया में हो चुका था. तो रशियन जो पीजेंट थे they were different from the European peasants in another way. Okay, they pooled their land together periodically and divided it according to the needs of the individual families. Okay, that means वहां पे क्या था, जो सोशलिज्म का एक जो कॉन्सेप्ट था, है ना, जो एक्चुअली they pooled their land together periodically and divided it accordingly to the need of the individual family. तो डिवाइड कर देते थे जो भी फैमिलीज में, है ना, इंडिविजुअल फैमिलीज में डिवाइड कर देते थे उन लोग के जो प्रॉपर्टी थे, है ना, या फिर लैंड, है ना, लैंड ही तो प्रॉपर्टी है. तो ये एक सोशलिज्म का जो एक आइडियोलॉजी है वो एक्सरसाइज हो रहा था धीरे धीरे, राइट. ओके ओके, so this was all about that was happening in Russia during 1914. ओके, मतलब 1914 से लेके क्या क्या हो रहा था 1905 तक, राइट. ओके, now we will study the concept of socialism in Russia. ओके, तो सोशलिज्म इन रशिया में क्या हो रहा था. ओके, तो मैंने एक चीज मेंशन की थी यहाँ पे, जो रशिया एंड यूरोप है वो अलग अलग है, ठीक है. ओके, तो मैंने शायद एक ही बोल दिया. ओके ओके, सोशलिज्म इन रशिया, रशिया में क्या हो रहा था, सोशलिज्म कैसे हुआ, ठीक है. तो वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज थे फिर इलीगल इन रशिया. ओके, रशिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थे वहां पे 1914 में वो इलीगल थे. ओके, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंड इन 1898 by socialists who respected Marx's idea. तो सोशलिस्ट ने क्या फॉर्म किया था, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है, मतलब सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, क्योंकि वहां पे जो वर्कर्स थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे, है ना. डेमोक्रेटिक मतलब जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ना, तो वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था. इट सेट अप ए न्यूज़पेपर, मोबिलाइज वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज वेरियस स्ट्राइक्स. तो ये जो पार्टी थे रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स, तो हाउ दे स्प्रेड देयर आइडियोलॉजी, है ना, वो कैसे स्प्रेड करेंगे कि जो एरिस्टोक्रेसी है वो गलत है, वी नीड ए पार्लियामेंट, है ना, हमें एक क्या चाहिए, वी नीड इक्वालिटी, इक्वल राइट्स, है ना. तो वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर में हो या फिर कोई भी जो ऐसा मीडिया हो वहां पे स्प्रेड करते थे. एंड क्या एनकरेज करते थे, वर्कर्स को मोबिलाइज करते थे, दैट व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट राइट, यू आर ऑप्रेस्ड बाय द industrialized capitalist people. They also encourage to organize various protests and strikes, है ना. वर्कर्स को बोल रहे थे you need to make or organize various strikes for your right, ठीक है. जो सोशलिस्ट थे वो एनकरेज कर रहे थे. So some Russian socialists felt that the Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialists. जो हमने पहले अभी डिस्कस किया है ना, जो रशियन सोशलिस्ट थे उन्होंने क्या क्या सोचा, जो रशियन जो पीजेंट है ना, पीजेंट जो लैंड को पीरियडिकली डिवाइड करते हैं, जो मतलब शेयर करते हैं, है ना, जो जिसको नीड, जो नीडी है उन लोगों को देते हैं. तो ये एक क्या है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म है ना.
तो ये नेचुरल सोशलिस्ट है. ओके, सो पीजेंट्स would be the main force of revolution. तो ये रिवोल्यूशन आया कहाँ से? सोशलिस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से? पीजेंट से. तो बेसिकली पीजेंट्स नॉट दी वर्कर्स. ओके, वर्कर्स नहीं है, वर्कर्स नहीं थे. पीजेंट्स जो थे they would be the main force of the revolution, and Russia could become socialist more quickly than other countries because of peasants in Russia. Okay, so socialists were active in countryside through the late 19th century. They formed the Socialist Revolutionary Party in 1919. Okay, so you have to remember the party name and the year. Okay, तो पहले हमने क्या देखा? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो 1898 में फॉर्म हुआ था. ओके, और ये जो पार्टी थे इसके आइडियोलॉजी मार्क्स से मैच होते थे, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी थे. ओके, तो ये जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है ना, ये जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है, दे वांटेड टू मोबिलाइज द वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स, राइट? they encourage to organize various strikes by the workers. Okay, एंड जो भी फर्स्ट सोशलिस्ट का जो कॉन्सेप्ट आया था, जो भी रेवोल्यूशन हुआ था, इट वाज पॉसिबल ड्यू टू दी पीजेंट्स. ठीक है, ड्यू टू दी पीजेंट्स. और वो क्या था, वो स्टेप क्या थे? दैट पीजेंट दे डिवाइड देयर लैंड पीरियडिकली एंड शेयर इट टू दी नीडी फैमिलीज, है ना. तो ये जो स्टेप्स था, इट मेड देम सोशलिस्ट. ओके, तो सोशलिज्म रशिया में कैसे आया? राइट, सोशलिज्म रशिया में कैसे आया? और द रोल ऑफ पीजेंट, है ना, द रोल ऑफ पीजेंट इन रशिया टू एनकरेज सोशलिज्म. ओके, then you have to remember another party name, that is Socialist Revolutionary Party. Okay, that is Socialist Revolutionary Party. जो थे, what was their aim? Their aim was they struggle for peasants' rights. Okay, basically the party, the Socialist Revolutionary Party, they struggle for peasants' rights and demanded that land belonging to nobles be transferred to the peasants. ओके, तो पहले क्या होता था, जो नोबल्स थे, है ना, फर्स्ट एस्टेट के जो भी लोग थे, नोबल्स थे, दे बेसिकली एक्सप्लॉइटेड द third estate people, that means the peasants, the other workers, है ना, the poor people, है ना. तो nobles exploited the peasants. तो specifically अगर हम peasant की बात करें, तो peasants उन लोगों को कैसे harass करते थे? जो land थे उन लोगों का, वो बेसिकली नोबल्स ले लेते थे peasant के जो land है, ठीक है, या फिर उन लोगों को जो राइट्स नहीं देते थे peasant को, राइट. तो नोबल ऐसे एक्सप्लॉइट करते थे, वेजेस ज्यादा नहीं देते थे. पीजेंट मतलब 100 इयर्स काम करके भी, या फिर 50-60 इयर्स काम करके भी उन लोगों को लैंड नहीं मिलता था, है ना. तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से पीजेंट का जो राइट है वो डिमांड किया था वेरियस पार्टी ने, है ना, जैसे कि रिवोल्यूशनरी पार्टी, है ना, जो भी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में जो हुआ था. दे स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड द लैंड बिलोंगिंग टू नोबल टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स. तो सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्री विद सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स. तो जो सोशल डेमोक्रेट्स है ना, जो भी सोशल डेमोक्रेट्स है, they were not agreed with the socialist revolutionaries. Okay,
So Lenin felt that peasants were not one united group. Okay, some were poor and the other were rich. Some worked as laborers while others were capitalists who employed workers. Okay, so जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, मतलब डेमोक्रेट्स का मतलब सोशल डेमोक्रेट्स भी एक ऐसे पार्टी है सोशल रिवोल्यूशनरीज की तरह. ओके, दे आल्सो वांटेड इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स. बट जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज ने जो डिमांड किया था उससे सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्री थे. ओके, कि सारा जो लैंड है नोबल का वो ट्रांसफर हो जाए पीजन के पास, राइट. बिकॉज लेनिन ने क्या सोचा, जो पीजन थे दे वर नॉट यूनाइटेड ग्रुप्स, मतलब उन लोगों के जो लाइफस्टाइल है सब पीजन के एक जैसा नहीं है. some peasants are really poor and some are really rich. Okay, some work as a laborer and some are capitalist in nature. Okay, so they have a difference in their lifestyles. So this uh, so जो differentiation था, okay, given this differentiation within them they could not all be part of a socialist movement. So that is why they could not join the socialist movement. मतलब उन लोगों को सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं माना गया, राइट. बिकॉज they were not united group. Okay, they were not in united group. They were, some portion are poor, some portion are rich, some are capitalists, some are laborers. Okay, because see, अगर कोई peasant capitalist है, why that capitalist peasant will support the poor people? No, definitely not. है ना, जो peasant capitalist है वो क्यों अपना पैसा दूसरों को देगा, right? So that is why there is a problem. There is a differentiation among the peasants. That is why they could not be part of the socialist movement. Okay. 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 So उस टाइम पे जो भी मतलब पार्टीज थे, है ना, दे all the parties have a different strategy, है ना. So the party was divided over the strategy of organization. Suppose हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आइडियोलॉजी कुछ होंगे, है ना, उसकी स्ट्रेटजी कुछ होंगे, तो ऐसे ही डिफरेंट पार्टी के जो थे डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज या स्ट्रेटजीज थे अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना. ओके. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सोशलिज्म इन रशिया, है ना, सोशलिज्म इन रशिया एंड peasant contribution. Okay, peasant contribution in making socialism in Russia. And you also need to remember various party, right, contribution of various party like Russian Social Democratic Workers Party, Socialist Revolutionary Party, etc. Okay, have you understood? Have you understood? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay, so next we will study the turbulent time.
ओके, द टर्बुलेंट टाइम मतलब जो रेवोल्यूशन हुआ था, है ना, रेवोल्यूशन हुआ था, कैसे हुआ था, प्रॉब्लम्स क्या क्या आए थे, एकदम जो पिक मोमेंट था वो क्या था, that we will study in our next class, okay, because it will be confusing अगर हम एक साथ सब करें। तो एक बार रिवाइज करते हैं पहले से। Okay, so we are studying about socialism in Europe. तो basically जो concept यहाँ पे हमारा है वो we have to remember socialism. ठीक है, जो socialism का concept है that means equal opportunity for all, division of property equally in the whole country. जो भी लोग हैं उन लोगों के पास जो प्रॉपर्टी है सेम होना चाहिए, और वहां पे कोई भी राजा नहीं होगा, है ना, वहां पे कोई भी ऐसा लीडर नहीं होगा, है ना, सब लोग लीडर होंगे, लीडर नहीं होंगे, सब लोग, एवरीवन कैन पार्टिसिपेट, जैसे कि एवरीवन हैव एवरीवन हैव टू हैव सम व्हाट प्रॉपर्टी, है ना, वहां पे कोई भी पोर पीपल तब नहीं होंगे अगर इक्वली हम डिवाइड करेंगे, है ना, और जो एक कलेक्टिवनेस है ना, वो हो जाएगा, जो इंटरेस्ट है अभी, जो इफ यू हैव प्रॉपर्टी ऑफ योर ओन, जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अगर है तुम्हारे पास, देन यू मस्ट बी बायर्स, है ना, तो दैट इज वाई सोशलिज्म encourage to the concept of equal property, division of equal property, right? Okay, so ये जो socialism का concept आया, ये basically property, that means what, wealth, है ना, that means economy, that means poor condition, है ना, उन प्रॉब्लम के वजह से आए। ओके, ठीक है, जो भी मतलब वर्कर्स रिलेटेड इशू, जो भी प्रॉब्लम्स थे, मनी हो या फिर हेल्थ कंडीशन हो, है ना, इसके वजह से जो कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म वो आया था। तो पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो भी चेंजेस हुए थे, है ना, ड्यू टू दी रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन लेकिन एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था, है ना, फ्रेंच रिवोल्यूशन एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था, जहाँ पे हमारा क्या चेंज हो गया, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया, है ना, मोनार्की से डेमोक्रेसी बना, ठीक है। ओके, हाँ, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन, हाँ, तो हम यूरोप में पढ़ रहे थे, है ना, तो सोसाइटी धीरे धीरे चेंज हो रहा था। एक तो लोग थे जो ग्रेजुअल चेंज चाहते थे, और कोई थे रेडिकल चेंज चाहते थे, तो उस हिसाब से आइडियोलॉजी बनती गई, जैसे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव, ये तीन जो आइडियोलॉजी है वो फॉर्म होता गया, है ना, कैसे फॉर्म होता गया, ड्यू टू ऑल दिस फ्रेंच रिवोल्यूशन के वजह से सोसाइटी चेंज हुए, और सोसाइटी कैसे चेंज होगी उस टॉपिक पे डिस्कस करते हुए लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव लोग बनते गए, है ना। फिर उसके बाद क्या आया, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, है ना, इंडस्ट्री आए, राइट, तो इंडस्ट्री जब आया तो प्रॉब्लम्स भी बहुत लेके आए, है ना, फिर उसके बाद उसको रिफॉर्म करने के लिए फिर नया आइडियोलॉजी बना, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज के लोग थे, दे वांटेड टू रिफॉर्म, है ना, जो भी प्रॉब्लम्स आए थे ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो दे वांटेड टू रिफॉर्म ऑल दिस प्रॉब्लम्स, और ऐसे ही क्या हुआ, सोशलिज्म का इमर्ज हुआ, मतलब सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते, है ना, जैसे कि हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी से ये होता है वो होता है, राइट्स नहीं मिलते हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये जो नहीं करना चाहिए मतलब अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, दे प्राइवेट प्रॉपर्टी वेयर द इविल्स, तो ये जो कॉन्सेप्ट था, एक मतलब कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना, ये जो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ रहा था, ये सोशलिज्म इसको हम कहते हैं, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। तो ऐसे ही यूरोप में क्या हुआ था, सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था, राइट। ओके, तो अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होंगे तो क्या होंगे, है ना, तो ऐसे ही डिबेट में फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स ने कॉन्सेप्ट दिए थे, देन लुइस
ब्लैंक ने कॉन्सेप्ट दिए थे, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट जो आइडियोलॉजी थे, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे, वो निकल के आया, है ना। कोऑपरेटिव्स, राइट। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट थे वो निकल के आया। देन हाउ कैन वी सपोर्ट सोशलिज्म, है ना। सोशलिज्म की सपोर्ट में क्या क्या कौन से पार्टीज बने थे, क्या क्या हो रहा था 1817 में, तो हमने वो भी पढ़ा, राइट। तो सी इस यहाँ पे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, तो यहाँ पे हमारा क्या खत्म होता है, यूरोप में जो सोशलिज्म आया वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो रशिया में क्या हो रहा था, ठीक है। रशिया में तो पहले अगर हम देखें तो क्या था, रशिया में मोनार्की थे, है ना। फिर 1917 में क्या हुआ, हमारा सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, है ना। और ये जो इवेंट्स हो रहे थे अक्टूबर में, अक्टूबर रिवॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं, जो भी इवेंट हो रहे थे इसको ही हम रशियन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम हाँ, तो ये हम रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो इन सब इवेंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1914 से, ठीक है। तो उस टाइम पे सार निकोलस टू थे, ओके, जो मोनार्की थे, ठीक है। तो हमने रशियन एम्पायर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, जैसे उन लोगों की इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीकल्चर भी था, इंडस्ट्री भी थे, है ना। तो हमने ये पढ़ा था। फिर इंडस्ट्री में भी जो वर्कर्स थे, है ना, उन लोगों के भी डिवीजन थे अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, ओके। तो हमने वर्कर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, ओके। देन हमने पीजन के बारे में पढ़ा, देन हमने रोल ऑफ पीजन के बारे में पढ़ा, है ना। फिर सोशलिज्म इन रशिया, तो रशिया में जैसे कि हमने पढ़ा था सोशलिज्म इन यूरोप, वहां पे कैसे इमर्ज हुआ, तो वैसे ही सोशलिज्म इन रशिया, रशिया में कैसे सोशलिज्म इमर्ज हुआ। यू हैव टू मेंशन द पीजन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीजन, यू हैव टू रिमेम्बर, ओके। तो यहाँ पे सोशलिज्म इन रशिया के बारे में अगर आए तो यू हैव टू मेंशन ऑल दिस पॉइंट्स इंक्लूडिंग द पीजन कंट्रीब्यूशन, ओके। Okay. Then in our next class, we will study the turbulent time. Okay, Russian Revolution का जो turbulent time है, हम वो पढ़ेंगे। वहाँ पे भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे। Okay, then हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। If you have any doubt, you can ask Vineet and Pallav. If you have any doubt, you can ask. Is it clear? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. So तो टर्म 1 का एग्जाम कब है आप लोगों का? Ma'am, from 2nd of November. नवंबर, राइट। ओके, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, ओके। ओके, देन वी कैन एंड दिस सेशन, राइट। थैंक यू, यू कैन लीव, ओके।